तस्वीरें हम सीधे आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, तस्वीरें भी आ चुकी हैं। देखिए TV9 के WITT वॉट मीनार है। In welcoming Prime Minister Narendra Modi. Great to see you again. We missed you. We missed you a lot. और मुझे विश्वास है कि दूसरे टर्म में भी हम उसी गति से आगे बढ़ेंगे। मेरे शरीर का हर कण, मेरे समय का हर क्षण देश को ही समर्पित है। मैं गुजारिश करूंगा माय होम ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर रामेश्वर राव जी से कि वो शॉल के साथ प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। Can we please have the shawl on stage? अब मैं वेलकम स्पीच के लिए इनवाइट करना चाहती हूं माय होम ग्रुप के वाइस चेयरमैन मिस्टर रामू राव को ऑन स्टेज। Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, respected Chairman Dr. Rameshwar Garu, ladies and gentlemen, I deem it my proud privilege to welcome our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji to the third edition of TV9 What India Thinks Today Summit. Thank you, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, for taking time out from very busy schedule to grace the occasion as the chief guest and deliver the summit keynote address. Your vision for inclusive growth and a world where war isn't an option is now part and parcel of the global lexicon. The world looks up to India under your leadership to navigate these extremely turbulent times. As a young entrepreneur, I'm deeply enthused by the manner in which aspirations of 1.4 billion Indians are being channelized into shaping India as a driver of world economic growth. The World Bank has said that India is set to dominate the global economic landscape, maintaining its status as the fastest growing large economy for the next 2 fiscal years. The IMF too has endorsed the India growth story. The extraordinary momentum is credited to the transformational policy making over the last decade. The Union government, under the leadership of Honorable Prime Minister Ji, Shri Narendra Modi Ji, has implemented a series of visionary schemes and initiatives aimed at propelling the nation towards sustained economic growth and global leadership. From infrastructure development under the PM Gati Shakti National Master Plan to fostering innovation through initiatives like Startup India and the Production-Linked Incentive Scheme, these reforms are transforming sectors such as manufacturing, digital economy, and financial inclusion. It is heartening to note that Honorable Prime Minister Shri Modi Ji is pushing for Digital India is fast becoming a template for even some developed countries, where the India stack is now being eagerly adopted. For me and millions like me who have a commitment to the India story, it is the most opportune time to skill up, scale up, and speed up the growth curve. At my home group, the motto is to align our business goals with nation building. Accordingly, for us, the larger public good prevails over the profit imperative. I've learned these values from my father, Dr. Rameshwar Garu, whose own entrepreneurial journey has been inspired by his deep spiritual foundation. Honorable Prime Minister, sir, your unwavering faith in young India, like a lot of people like me, and your clarion call for pivoting to job givers from job seekers is a paradigm shift in the entrepreneurial journey of India. Thanks to you, sir, what India thinks today is a new era of stability, growth, and equity.
Thank you, one and all. मैं अब गुजारिश करूंगी कि आप हमारे एक स्पेशल प्रेजेंटेशन के लिए मंच पर प्लीज, इफ यू कैन प्लीज कम बैक ऑन स्टेज, अगर आप मंच पर आ जाए, बिकॉज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज द कल्मिनेशन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट फुटबॉल टैलेंट हंट फॉर यंग बॉयज एंड गर्ल्स, द न्यूज़ 9 हंट फॉर टाइगर्स एंड टाइग्रेसेस. Our global partners in this national scouting program were Austria's RISPO, the German Football Association, Bundesliga, VfB Stuttgart, the International Football Institute of Germany, and technology company Steiker Labs, technical partner Sudeva FC. आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि टैलेंट हंट में 15,000 स्कूलों के 50,000 से ज्यादा बच्चों को कवर किया गया है. And today, the 28 final winners of News 9 Tigers and Tigresses will get to meet with the Honorable Prime Minister of India himself and seek his blessings. Before these children come on the stage, I would like to invite TV9 Network's MD, Mr. Barun Das, whole-time director, TV9 Network, Mr. Hemant Sharma, Ambassador of Austria to India, Ms. Katharina Weiser, Board Member and Chief Marketing Officer of VfB Stuttgart, Mr. Ruven Kasper, and Advisor, Bundesliga, Mr. Peter Liebel on stage as well. Can I please request you all to come on stage? A huge round of applause for our very special guests. Can you please come on stage? This way, please. And we now invite our young football champions to come up on the stage. Let's encourage them, invite them here. Put your hands together for these very bright, talented young children. इस खेल में अब खेला होगा, हर नहले पे दहला होगा. गेम बड़ा है, स्टेज बड़ा है, पूरा भारत साथ खड़ा है. We are the Tigers. साथ खड़ा है. We are the I think these children deserve a louder round of applause. Come on, this is India's future right here with you. जोरदार तालियों से, जोरदार तालियों से. थैंक यू वेरी मच. बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. And imagine 5, 10, 15, 20 years from now, you'll have this picture with the Prime Minister of India. Thank you very much. Thank you to all of our guests. Can I please request Mr. Barun Das to please stay on stage and deliver his opening speech. Our Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, respected Chairman of My Home Group, promoters of TV9 Network, Dr. Rameshwar Rao ji, other esteemed guests from India and abroad, ladies and gentlemen, boys and girls. It is my privilege to welcome you all to the third edition of What India Thinks Today Summit, which begins with a keynote address from the Honorable Prime Minister. As we all know, at the core of Modi ji's vision is India first. To realize his goal of Viksit Bharat by 2047, I understand, sir, that you are focusing a bit more on 3 constituencies. I take the liberty to express that. These constituencies are the youth of India, the women of India, and the Indian diaspora. I have always maintained that women empowerment and women-led development
should be the foundation of anything that we do as a society. So today, we have turned our focus to the other two constituencies. As far as the global diaspora is concerned, we at TV9 Network have initiated our engagement last year in the News 9 Global Summit at Stuttgart, Germany, which will be bigger and better in October later this year. We also have two more geographies on our radar, the UAE and the US for News 9 Global Summit. These are initiatives that precede TV9 Network's global expansion under the guidance of our chairman, Dr. Rameshwar Rao. Today, we have 5 international locations: London, Abu Dhabi, Melbourne, Munich, and Paris. The members of the Indian diaspora have gathered there already to watch the Honorable PM's keynote address live. Our second constituency is the youth. I have observed that whenever the Honorable Prime Minister interacts with the children, there's a unique chemistry at play. That makes me wonder, sir, whether you love the children more or the children love you more. Today, you have just witnessed this unique chemistry. By the way, those of you been wondering that why football? 9 months ago, when we initiated this national scouting program for young footballing talent called the Hunt for India's Tigers and Tigresses, I drew my inspiration from Swami Vivekananda. He once famously said that you will be nearer to heaven through football than through the study of Gita. These 28 boys and girls who have been chosen to train in Austria and Germany will fly out day after. But today, these talented children got the opportunity of a lifetime to meet you, Prime Minister, sir, and seek your blessings. I have no doubt that these young tigers and tigresses, some of them, if not all of them, will eventually bring glory to our country. Modi ji, on behalf of our network, I would like to reaffirm with all humility that we will stay committed to your vision of India first with many such initiatives. But sir, that said, it is quite evident that when you say India first, you never mean India only. Friends, I'm sure all of you have heard Prime Minister's recent conversation with Lex Friedman. Stunning as it was for the variety and depth of subjects it covered, for me personally, it was a masterclass in life and leadership. As I listened to Modi ji's deep thoughts on everything, from spirituality to geopolitical discord, I was reminded once again of the great Swami Vivekananda, who similarly spoke with such clarity and compassion. As you would all recall, the famous speech of Swami Vivekananda at the World's Parliament of Religions in Chicago. It was the first time an Indian inspired the entire world with our value of universal love and brotherhood. So what is it about this great man that gives them this universal appeal? This is again my personal viewpoint. To my mind, all the great leaders, they demonstrate 3 unique qualities. 1, high level of intellect that enables them to predict the future from reading current and past trend. 2, they all spoke from their heart with eloquence, and hence their words resonated across the world. And 3, they all pursued a higher sense of purpose, which is global good. When I listen to the Prime Minister, I find in his words repeated articulation of a universal vision for shared and collective prosperity. His insistence that leadership is all about serving people
makes him a man who has the ear and trust of global leaders even when they are at war with each other. Today, the world sees India as a universal friend, Vishwabandhu. And the Honorable Prime Minister is no doubt is the tallest and most admired statesman in the world today. Napoleon Bonaparte, though I agree that he himself couldn't live up to it to that extent, has once said, "The heart of a statesman should be in his head." Sir, your actions have demonstrated that without any doubt to a world who is keenly watching. We are grateful, sir. You've chosen to grace this summit with your presence this evening. With that, let me make way for what all of you have been eagerly waiting, the summit keynote address by none other than the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. श्रीमान रामेश्वर गारू जी, रामू जी, वरुण दास जी, टीवी 9 की पूरी टीम, मैं आपके नेटवर्क के सभी दर्शकों का, यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों का अभिनंदन करता हूं। इस समिट के लिए बधाई देता हूं। टीवी 9 नेटवर्क का विशाल रीजनल ऑडियंस है और अब तो टीवी 9 का एक ग्लोबल ऑडियंस भी तैयार हो रहा है। इस समिट में अनेक देशों से इंडियन डायस्पोरा के लोग विशेष तौर पर लाइव जुड़े हुए हैं। कई देशों के लोगों को मैं यहां से देख भी रहा हूं, वे लोग वहां से वेव कर रहे हैं। हो सकता है मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। मैं यहां नीचे स्क्रीन पर हिंदुस्तान के अनेक शहरों में बैठे हुए सब दर्शकों को भी उतने ही उत्साह उमंग से देख रहा हूं। मेरी तरफ से उनका भी स्वागत है। साथियों, आज विश्व की दृष्टि भारत पर है, हमारे देश पर है। दुनिया में आप किसी भी देश में जाएं, वहां के लोग भारत को लेकर एक नई जिज्ञासा से भरे हुए हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि जो देश 70 साल में 11वें नंबर की इकोनॉमी बना, वो महज 7-8 साल में 5वें नंबर की इकोनॉमी बन गया। अभी IMF के नए आंकड़े सामने आए हैं। वो आंकड़े कहते हैं कि भारत दुनिया की एकमात्र मेजर इकोनॉमी है जिसने 10 वर्षों में अपने जीडीपी को डबल किया है।
बीते दशक में भारत ने 2 लाख करोड़ डॉलर अपनी इकोनॉमी में जोड़े हैं। जीडीपी का डबल होना सिर्फ आंकड़ों का बदलना मात्र नहीं है, इसका इंपैक्ट देखिए। 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं और ये 25 करोड़ लोग एक नियो मिडिल क्लास का हिस्सा बने हैं। ये नियो मिडिल क्लास एक प्रकार से नई जिंदगी शुरू कर रहा है, ये नए सपनों के साथ आगे बढ़ रहा है, हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है और उसको वाइब्रेंट बना रहा है। आज दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी हमारे भारत में है। ये युवा तेजी से स्किल्ड हो रहा है, इनोवेशन को गति दे रहा है और इन सब के बीच भारत की फॉरेन पॉलिसी का मंत्र बन गया है इंडिया फर्स्ट। एक जमाने में भारत की पॉलिसी थी सबसे समान रूप से दूरी बनाकर चलो, इक्वी डिस्टेंस की पॉलिसी। आज के भारत की पॉलिसी है सबके समान रूप से करीब होकर चलो, इक्वी क्लोजनेस की पॉलिसी। दुनिया के देश भारत की ओपिनियन को, भारत के इनोवेशन को, भारत के एफर्ट्स को जैसा महत्व आज दे रहे हैं वैसा पहले कभी नहीं हुआ। आज दुनिया की नजर भारत पर है। आज दुनिया जानना चाहती है व्हाट इंडिया थिंक टुडे। साथियों, भारत आज वर्ल्ड ऑर्डर में सिर्फ पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा बल्कि फ्यूचर को शेप और सिक्योर करने में योगदान दे रहा है। दुनिया ने ये कोरोना काल में अच्छे से अनुभव किया है। दुनिया को लगता था कि हर भारतीय तक वैक्सीन पहुंचने में ही कई साल लग जाएंगे, लेकिन भारत ने हर आशंका को गलत साबित किया। हमने अपनी वैक्सीन बनाई, हमने अपने नागरिकों का तेजी से वैक्सीनेशन कराया और दुनिया के 150 से अधिक देशों तक दवाएं और वैक्सीन भी पहुंचाई। आज दुनिया, और जब दुनिया संकट में थी तब भारत की ये भावना दुनिया के कोने कोने तक पहुंची कि हमारे संस्कार क्या है, हमारा तौर तरीका क्या है। साथियों, अतीत में दुनिया ने देखा है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब भी कोई वैश्विक संगठन बना उसमें कुछ देशों की ही मोनोपोली रही। भारत ने मोनोपोली नहीं बल्कि मानवता को सर्वोपरि रखा। भारत ने 21वीं सदी के ग्लोबल इंस्टीट्यूशन के गठन का रास्ता बनाया
और हमने ये ध्यान रखा कि सबकी भागीदारी हो, सबका योगदान हो। जैसे प्राकृतिक आपदाओं की चुनौती है, देश कोई भी हो, इन आपदाओं से इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान होता है। आज ही म्यांमार में जो भूकंप आया है, आप टीवी पर देखें तो बहुत बड़ी बड़ी इमारतें ध्वस्त हो रही है, ब्रिज टूट रहे हैं। और इसलिए भारत ने कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI नाम से एक वैश्विक नया संगठन बनाने की पहल की। ये सिर्फ एक संगठन नहीं, बल्कि दुनिया को प्राकृतिक आपदाओं के लिए तैयार करने का संकल्प है। भारत का प्रयास है प्राकृतिक आपदा से पुल, सड़कें, बिल्डिंग्स, पावर ग्रिड, ऐसा हर इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षित रहे, सुरक्षित निर्माण हो। साथियों, भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए हर देश का मिलकर काम करना बहुत जरूरी है। ऐसी एक चुनौती है हमारे एनर्जी रिसोर्सेज की। इसलिए पूरी दुनिया की चिंता करते हुए भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA का समाधान दिया है, ताकि छोटे से छोटा देश भी सस्टेनेबल एनर्जी का लाभ उठा सके। इससे क्लाइमेट पर तो पॉजिटिव असर होगा ही, ये ग्लोबल साउथ के देशों की एनर्जी नीड्स को भी सिक्योर करेगा। और आप सबको ये जानकर गर्व होगा कि भारत के इस प्रयास के साथ आज दुनिया के 100 से अधिक देश जुड़ चुके हैं। साथियों, बीते कुछ समय से दुनिया ग्लोबल ट्रेड में असंतुलन और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी चैलेंजेस का सामना कर रहा है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए भी भारत ने दुनिया के साथ मिलकर नए प्रयास शुरू किए हैं। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC ऐसा ही एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट कॉमर्स और कनेक्टिविटी के माध्यम से एशिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट को जोड़ेगा। इससे आर्थिक संभावनाएं तो बढ़ेगी ही, दुनिया को अल्टरनेटिव ट्रेड रूट्स भी मिलेंगे। इससे ग्लोबल सप्लाई चेन भी और मजबूत होगी। साथियों, ग्लोबल सिस्टम्स को अधिक पार्टिसिपेटिव, अधिक डेमोक्रेटिक बनाने के लिए भी भारत ने अनेक कदम उठाए हैं। और यहीं पर ही भारत मंडपम में G20 समिट हुई थी। उसमें अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर बनाया गया है। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है। इसकी मांग लंबे समय से हो रही थी, जो भारत की प्रेसिडेंसी में पूरी हुई। आज ग्लोबल डिसीजन मेकिंग इंस्टीट्यूशंस में भारत ग्लोबल साउथ के देशों की आवाज बन रहा है। इंटरनेशनल योगा डे, WHO का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ग्लोबल फ्रेमवर्क, ऐसे कितने ही क्षेत्रों में भारत के प्रयासों ने
नए वर्ल्ड ऑर्डर में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। और ये तो अभी शुरुआत है। ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भारत का सामर्थ्य नई ऊंचाई की तरफ बढ़ रहा है। साथियों, 21वीं सदी के 25 साल बीत चुके हैं। इन 25 सालों में 11 साल हमारी सरकार ने देश की सेवा की है। और जब हम व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे उससे जुड़ा सवाल उठाते हैं तो हमें ये भी देखना होगा कि पास्ट में क्या सवाल थे, क्या जवाब थे। इससे टीवी 9 के विशाल दर्शक समूह को भी अंदाजा होगा कि कैसे हम आत्मनिर्भरता से आत्मनिर्भरता तक, एस्पिरेशन से अचीवमेंट तक, डिस्परेशन से डेवलपमेंट तक पहुंचे हैं। आप याद करिए, एक दशक पहले गांव में जब टॉयलेट का सवाल आता था तो माताओं बहनों के पास रात ढलने के बाद और भोर होने से पहले का ही जवाब होता था। आज उसी सवाल का जवाब स्वच्छ भारत मिशन से मिलता है। 2013 में जब कोई इलाज की बात करता था तो महंगे इलाज की चर्चा होती थी। आज उसी सवाल का समाधान आयुष्मान भारत में नजर आता है। 2013 में किसी गरीब की रसोई की बात होती थी तो धुएं की तस्वीर सामने आती थी। आज उसी समस्या का समाधान उज्ज्वला योजना में दिखता है। 2013 में महिलाओं से बैंक खाते के बारे में पूछा जाता था तो वो चुप्पी साध लेती थी। आज जनधन योजना के कारण 30 करोड़ से ज्यादा बहनों का अपना बैंक अकाउंट है। 2013 में पीने के पानी के लिए कुएं और तालाबों की तक जाने की मजबूरी थी। आज उसी मजबूरी का हल हर घर नल से जल योजना में मिल रहा है। यानी सिर्फ दशक नहीं बदला बल्कि लोगों की जिंदगी बदली है। और दुनिया भी इस बात को नोट कर रही है, भारत के डेवलपमेंट मॉडल को स्वीकार रही है। आज भारत सिर्फ नेशन ऑफ ड्रीम्स नहीं बल्कि नेशन दैट डिलीवर्स भी है। साथियों, जब कोई देश अपने नागरिकों की सुविधा और समय को महत्व देता है तब उस देश का समय भी बदलता है। यही आज हम भारत में अनुभव कर रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। पहले पासपोर्ट बनवाना कितना बड़ा काम था ये आप जानते हैं। लंबी वेटिंग, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस, अक्सर राज्यों की राजधानी में ही पासपोर्ट केंद्र होते थे। छोटे शहरों के लोगों को पासपोर्ट बनवाना होता था तो 1-2 दिन कहीं ठहरने का इंतजाम करके चलते थे। अब वो हालात पूरी तरह बदल गया है। एक आंकड़े पर आप ध्यान दीजिए, पहले देश में सिर्फ 77 पासपोर्ट सेवा केंद्र थे। आज इनकी संख्या 550 से ज्यादा हो गई है। पहले पासपोर्ट बनवाने में, और मैं 2013 के पहले की बात करूं, मैं पिछली शताब्दी की बात नहीं कर रहा हूं, पासपोर्ट बनवाने में जो वेटिंग टाइम 50 दिन तक होता था वो अब 5-6 दिन तक सिमट गया है। साथियों,
ऐसी ही ट्रांसफॉर्मेशन हमने बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में भी देखा है। हमारे देश में 50-60 साल पहले बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया, ये कहकर कि इससे लोगों को बैंकिंग सुविधा सुलभ होगी। इस दावे की सच्चाई हम जानते हैं। हालत ये थी कि लाखों गांवों में बैंकिंग की कोई सुविधा ही नहीं थी। हमने स्थिति को भी बदला है। ऑनलाइन बैंकिंग तो हर घर में पहुंचाई है। आज देश के हर 5 किलोमीटर के दायरे में कोई न कोई बैंकिंग टच पॉइंट जरूर है। और हमने सिर्फ बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का ही दायरा नहीं बढ़ाया, बल्कि बैंकिंग सिस्टम को भी मजबूत किया। आज बैंकों का एनपीए बहुत कम हो गया है। आज बैंकों का प्रॉफिट 1,40,000 करोड़ रुपए के नए रिकॉर्ड को पार कर चुका है। और इतना ही नहीं, जिन लोगों ने जनता को लूटा है, उनको भी अब लूटा हुआ धन लौटाना पड़ रहा है। जिस ईडी को दिन रात गालियां दी जा रही है, ईडी ने 22,000 करोड़ रुपए से अधिक वसूले हैं। ये पैसा कानूनी तरीके से उन पीड़ितों तक वापस पहुंचाया जा रहा है जिनसे ये पैसा लूटा गया था। साथियों, एफिशिएंसी से गवर्नमेंट इफेक्टिव होती है। कम समय में ज्यादा काम हो, कम रिसोर्सेज में अधिक काम हो, फिजूल खर्ची ना हो, रेड टैप के बजाय रेड कारपेट पर बल हो। जब कोई सरकार ये करती है तो समझिए वो देश के संसाधनों को रिस्पेक्ट दे रही है। और पिछले 11 साल से हमारी सरकार की बड़ी प्राथमिकता रहा है। मैं कुछ उदाहरणों के साथ अपनी बात बताऊंगा। साथियों, अतीत में हमने देखा है कि सरकारें कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिनिस्ट्रीज में एकोमोडेट करने की कोशिश करती थी, लेकिन हमारी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में ही कई मंत्रालयों का विलय कर दिया। आप सोचिए, अर्बन डेवलपमेंट डेवलपमेंट अलग मंत्रालय था और हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन अलग मंत्रालय था। हमने दोनों को मर्ज करके हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय बना दिया। इसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज अफेयर्स अलग था, विदेश मंत्रालय अलग था। हमने इन दोनों को भी एक साथ जोड़ दिया। पहले जल संसाधन नदी विकास मंत्रालय अलग था और पेयजल मंत्रालय अलग था। हमने इन्हें भी जोड़कर जल शक्ति मंत्रालय बना दिया। हमने राजनीतिक मजबूरी के बजाय देश की प्रायोरिटीज और देश के रिसोर्सेज को आगे रखा। साथियों, हमारी सरकार ने रूल्स और रेगुलेशंस को भी कम किया, उन्हें आसान बनाया। करीब 1500 ऐसे कानून थे जो समय के साथ अपना महत्व खो चुके थे, उनको हमारी सरकार ने खत्म किया। करीब 40,000 कंप्लायंसेस को हटाया गया। ऐसे कदमों से दो फायदे हुए। एक तो जनता को हैरेसमेंट से मुक्ति मिली और दूसरा सरकारी मशीनरी की एनर्जी भी बची। एक और एग्जाम्पल जीएसटी का है। 30 से ज्यादा टैक्सेस को मिलाकर एक टैक्स बना दिया गया है। इसको प्रोसेस के डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से देखें तो कितनी बड़ी बचत हुई है। साथियों, सरकारी खरीद में पहले कितनी फिजूल खर्ची होती थी, कितना करप्शन होता था, ये मीडिया के आप लोग आए दिन रिपोर्ट करते थे। हमने जेम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म बनाया। अब सरकारी डिपार्टमेंट इस प्लेटफॉर्म पर अपनी जरूरतें बताते हैं, इसी पर वेंडर बोली लगाते हैं और फिर ऑर्डर दिया जाता है। इसके कारण भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम हुई है
और सरकार को 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी की जो व्यवस्था भारत ने बनाई है उसकी तो दुनिया में चर्चा है। डीबीटी की वजह से टैक्स पेयर के 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा गलत हाथों में जाने से बचे हैं। 10 करोड़ से ज्यादा फर्जी लाभार्थी जिनका जन्म भी नहीं हुआ था, जो सरकारी योजनाओं का फायदा ले रहे थे, ऐसे फर्जी नामों को भी हमने कागजों से हटाया है। साथियों, हमारी सरकार टैक्स की पाई पाई का ईमानदारी से उपयोग करती है और टैक्स पेयर का भी सम्मान करती है। सरकार ने टैक्स सिस्टम को टैक्स पेयर फ्रेंडली बनाया है। आज आईटीआर फाइलिंग का प्रोसेस पहले से कहीं ज्यादा सरल और तेज है। पहले सीए की मदद के बिना आईटीआर फाइल करना मुश्किल होता था। आज आप कुछ ही समय के भीतर खुद ही ऑनलाइन आईटीआर फाइल कर पा रहे हैं और रिटर्न फाइल करने के कुछ ही दिनों में रिफंड आपके अकाउंट में भी आ जाता है। फेसलेस असेसमेंट स्कीम की टैक्स पेयर्स को परेशानियों से बचा रही है। गवर्नेंस में एफिशिएंसी से जुड़े ऐसे अनेक रिफॉर्म्स ने दुनिया को एक नया गवर्नेंस मॉडल दिया है। साथियों, पिछले 10-11 साल में भारत हर सेक्टर में बदला है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है और एक बड़ा बदलाव सोच का आया है। आजादी के बाद के अनेक दशकों तक भारत में ऐसी सोच को बढ़ावा दिया गया जिसमें सिर्फ विदेशी को ही बेहतर माना गया। दुकान में भी कुछ खरीदने जाओ तो दुकानदार के पहले बोल यही होते थे, भाई साहब लीजिए ना, ये तो इंपोर्टेड है। आज स्थिति बदल गई है। आज लोग सामने से पूछते हैं, भाई मेड इन इंडिया है या नहीं है। साथियों, आज हम भारत की मैन्युफैक्चरिंग एक्सेलेंसी का एक नया रूप देख रहे हैं। अभी 3-4 दिन पहले ही एक न्यूज आई है कि भारत ने अपनी पहली एमआरआई मशीन बना ली है। अब सोचिए, इतने दशकों तक हमारे यहां विदेशी एमआरआई मशीन ही नहीं थी। अब मेड इन इंडिया एमआरआई मशीन होगी तो जांच की कीमत भी बहुत कम हो जाएगी। साथियों, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान ने देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक नई ऊर्जा दी है। पहले दुनिया भारत को ग्लोबल मार्केट कहती थी, आज वही दुनिया भारत को एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देख रही है। ये सक्सेस कितनी बड़ी है, इसके उदाहरण आपको हर सेक्टर में मिलेंगे। जैसे हमारी मोबाइल फोन इंडस्ट्री है। 2014-15 में हमारा एक्सपोर्ट $1 बिलियन तक भी नहीं था, लेकिन एक दशक में हमने $20 बिलियन के फिगर से भी आगे निकल चुके हैं। आज भारत ग्लोबल टेलीकॉम और नेटवर्किंग इंडस्ट्री का एक पावर सेंटर बनता जा रहा है। ऑटोमोटिव सेक्टर की सक्सेस से भी आप अच्छी तरह परिचित है। इससे जुड़े कंपोनेंट्स के एक्सपोर्ट्स भी भारत में एक नई पहचान बना रहे हैं। पहले हम बहुत बड़ी मात्रा में मोटरसाइकिल पार्ट्स इंपोर्ट करते थे, लेकिन आज भारत में बने पार्ट्स यूएई और जर्मनी जैसे अनेक देशों तक पहुंच रहे हैं। सोलर एनर्जी सेक्टर ने भी सफलता के नए आयाम गढ़े। हमारे सोलर सेल्स, सोलर मॉड्यूल का इंपोर्ट कम हो रहा है और एक्सपोर्ट 23 गुना तक बढ़ गया है। बीते एक दशक में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट भी 21 गुना बढ़ा है। ये सारी अचीवमेंट्स देश की मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी की ताकत को दिखाती है। ये दिखाती है कि भारत में कैसे हर सेक्टर में नई जॉब्स भी क्रिएट हो रही है। साथियों, TV9 की समिट में विस्तार से चर्चा होगी, अनेक विषयों पर मंथन होगा। आज हम जो भी सोचेंगे,
जिस भी विजन पर आगे बढ़ेंगे वो हमारे आने वाले कल को, देश के भविष्य को डिजाइन करेगा। पिछली शताब्दी के इसी दशक में भारत ने एक नई ऊर्जा के साथ आजादी के लिए नई यात्रा शुरू की थी और हमने 1947 में आजादी हासिल करके भी दिखाई। अब इस दशक में हम विकसित भारत के लक्ष्य के लिए चल रहे हैं और हमें 2047 तक विकसित भारत का सपना जरूर पूरा करना है। और जैसा मैंने लाल किले से कहा है, इसमें सबका प्रयास आवश्यक है। इस समिट का आयोजन कर TV9 ने भी अपनी तरफ से एक पॉजिटिव इनिशिएटिव लिया है। एक बार फिर आप सभी को इस समिट की सफलता के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। मैं TV9 को विशेष रूप से बधाई दूंगा क्योंकि पहले भी मीडिया हाउस समिट करते रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर एक छोटे से 5 स्टार होटल के कमरे में वो समिट होती थी और बोलने वाले भी वही, सुनने वाले भी वही, कमरा भी वही। TV9 ने इस परंपरा को तोड़ा और ये जो मॉडल पेश किया है, 2 साल के भीतर भीतर देख लेना सभी मीडिया हाउस को यही करना पड़ेगा। यानी TV9 थिंक्स टुडे, वो भाग्यों के लिए रास्ता खोल देगा। मैं इस प्रयास के लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं आपकी पूरी टीम को। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आपने इस इवेंट को एक मीडिया हाउस की भलाई के लिए नहीं, देश की भलाई के लिए आपने उसकी रचना की। 50,000 से ज्यादा नौजवानों के साथ एक मिशन मोड में बातचीत करना, उनको जोड़ना, उनको मिशन से साथ जोड़ना और उसमें से जो बच्चे सिलेक्ट होकर के आए उनकी आगे की ट्रेनिंग की चिंता करना, ये अपने आप में बहुत अद्भुत काम है। मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ। जिन नौजवानों से मुझे यहाँ फोटो निकलवाने का मौका मिला है, मुझे भी खुशी हुई कि देश के होनहार लोगों के साथ मैं अपनी फोटो निकलवा पाया। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं दोस्तों कि आपके साथ मेरी फोटो आज निकली है। और मुझे पक्का विश्वास है कि सारी युवा पीढ़ी जो मुझे दिख रही है, 2047 में जब देश विकसित भारत बनेगा, सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी आप लोग हैं। क्योंकि आप उम्र के उस पड़ाव पर होंगे जब भारत विकसित होगा, आपके लिए मौज ही मौज है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन आप सभी ने सुना। थोड़ी देर पहले ही वो संबोधन उन्होंने समाप्त किया है, लेकिन अभी इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष के कार्यक्रम में उपस्थित हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश को कैसे 2047 तक विकसित बनाना है, भारत के लक्ष्य क्या होंगे, इस पर प्रधानमंत्री ने अपने विचार रखे और साथ ही टीवी 9 के इस प्रयास की सराहना भी की और कहा कि टीवी 9 जो है उसने जो कुछ भी सोचा इसको आने वाले दिनों में बाकी लोग भी फॉलो करेंगे। समिट के लिए प्रधानमंत्री ने टीवी 9 को बधाई भी दी और साथ ही कहा कि बड़ी संख्या में लोगों को एक विजन से जोड़ना, टीवी 9 का ये बड़ा अभियान, टीवी 9 के स्पोर्ट्स अभियान की भी प्रशंसा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया जानना चाहती है कि भारत क्या सोच रहा है। भारत ने मोनोपोली नहीं, मानवता को बढ़ावा दिया, यह प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा है। साथ ही आपदा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए भारत ने संगठित प्रयास किए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी हमारे भारत में है। ये युवा तेजी से स्किल्ड हो रहा है, इनोवेशन को गति दे रहा है और इन सब के बीच भारत की फॉरेन पॉलिसी का मंत्र बन गया है इंडिया फर्स्ट। एक जमाने में भारत की पॉलिसी थी सबसे समान रूप से दूरी बनाकर चलो, इक्विडिस्टेंस की पॉलिसी। आज के भारत की पॉलिसी है सबके समान रूप से करीब होकर चलो, इक्वी क्लोजनेस की पॉलिसी। दुनिया के देश भारत की ओपिनियन को, भारत के इनोवेशन को, भारत के एफर्ट्स को जैसा महत्व आज दे रहे हैं वैसा पहले कभी नहीं हुआ। आज दुनिया की नजर भारत पर है। आज दुनिया जानना चाहती है व्हाट इंडिया थिंक टुडे। तो दुनिया जानना चाहती है व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे।